बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैम्ब्रिज स्कॉलर्स सीरीज़ की साइंस 8 की टेक्स्ट बुक, इसके साथ साथ एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए और SLOs की रीइंफोर्समेंट के लिए और होमवर्क जो आपको दिया जाएगा उसे सॉल्व करने के लिए आपके पास समर पैक क्लास 8 का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ पेरेंट्स और टीचर्स अगर किसी तरह की कुछ गाइडेंस चाहिए तो उनके लिए समर पैक एक बहुत यूज़फुल रिसोर्स साबित होगा। इस रिसोर्स पैक में तमाम SLOs अपनी मुनफरिद टीचिंग मेथडोलॉजी के साथ और एलाइड एक्टिविटीज़ के साथ बहुत उम्दा तरीके से बयान किए गए हैं। साइंस का ये समर पैक और ये रिसोर्स पैक canterpublisher.com वेबसाइट पे इजीली सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है। It's our 8th lecture from chapter 1, that is human organ system, and the lecture is about the role of kidney in excretion. In the previous lecture we discussed in detail the complete structure of excretory system that contains kidneys, ureters, urinary bladder and urethra. Now from all these four structures, the kidney is the main excretory organs. All the filtration, all the cleaning takes place by kidneys. So the SLO that we have to achieve through this lecture is describe the role of kidneys in excretion of waste. In this lecture we will study how the pair of kidneys play the role of excretion, how the blood is filtered when it comes into the kidneys, and how the urine is produced in the kidneys. Just revise for a moment which type of waste is released and produced in the kidneys. Number 1 is water. That is filtered out, extra water is filtered out in the kidneys. Some part of the extra water is also released through skin, but here the skin is not our concern. We are just concerned with the function of kidneys. The other waste products include protein metabolic waste that can include nitrogenous waste, particularly uric acid, and the other mineral salts that are the results of other metabolic activities, just as digestion of fats, digestion of carbohydrates, etc. So these three types of wastes are removed from kidneys. It does not mean that the kidney removes all the waste, all the water from the blood, and resultantly we fall into dehydration, but some useful nutrients are returned back to the blood. First of all, to study the process we have to understand the structure of kidney. And to understand the structure of kidney, textbook page number 14 will help us a lot. Here you can see in the figure 1.9 the cross section of a kidney and its major parts. The outer part of kidney, the very outer region of kidney is called renal cortex. It is the outer part having arteries and veins. The other major part that you can see, a pyramidal shape, you can say it as a triangular shape, is renal medulla. Renal medulla is the second part of kidney, and this is the part of kidney that contains actually filtration unit, nephron. Millions of filtration units are present in one kidney. So filtration units are present in renal medulla, that are nephrons. Further, when we proceed, we will discuss the structure of nephron and its working as well. Renal pelvis, as you can see here, is the third part of a kidney. It is the outlet of ureter, a connecting tube to the bladder. Urine is drained. It is also the drainage point. Urine is drained from here, from this point to its next destination. All the arteries, all the veins enter into the kidney and leave out the kidney at the renal pelvis point. These were the three main parts of a kidney. Now we will discuss in detail the nephron or the filtration unit.
Now move to your figure 1.10 of your textbook page 15. Here it is, you can see a nephron. इस नेफ्रॉन को हमने किडनी के इस छोटे से एक पिरामिड लिया पहले, यानी रीनल मेडुला, एक रीनल मेडुला का एक सेक्शन लिया। उस रीनल मेडुला में नेफ्रॉन का एक सेक्शन लेके आपको एनलार्ज व्यू में दिखाया गया है ये सारा। अब यहाँ ये जो लाइन दिखाई गई है ये बता रहा है कि इतना पार्ट कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है एक नेफ्रॉन का, और इतना बाकी का ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और ये लूप ऑफ हेनले ये सारा मेडुला में प्रेजेंट होता है। मेडुला से ये पार्ट ओपन हो जाता है यूरेटर में। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको कुछ ओपनिंग्स दिखाई दे रही हैं, कुछ पोरस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये पोरस स्ट्रक्चर ओपन्स इनटू द यूरेटर्स। अब हम बारी बारी नेफ्रॉन के पार्ट्स देखेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है। तो नेफ्रॉन के दो मेजर पार्ट्स हैं, एक है रीनल कॉर्पसल और एक है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ये वाला हिस्सा कितना, इट्स द रीनल कॉर्पसल एंड दीज आर द रीनल ट्यूब्यूल्स। ये जो आपको कर्व और कॉइल स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ये ट्यूब्यूलर सेक्शन है किडनी का। अब हम ये तो पढ़ चुके हैं कि किडनी का फंक्शनल यूनिट यानी फिल्ट्रेशन यूनिट, किडनी का तमाम प्रोसेस जहाँ से होता है वो नेफ्रॉन्स हैं। इस तमाम रीनल कॉर्पसल में और रीनल ट्यूब्यूल में यूरिन की फॉर्मेशन होती है और इसको फिल्टर किया जाता है। यूजफुल न्यूट्रिएंट्स वापस ब्लड में ले जाए जाते हैं और वापस बॉडी को रिटर्न कर दिए जाते हैं। अब जो रीनल कॉर्पसल है वो एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है एक्चुअली, जिसे बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। बोमेन्स वाज द name of person upon which it was named. The structure was named who discovered it and it was named after it. अब इस बोमेन्स कैप्सूल में कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, ब्लड कैपिलरीज का। आप देख सकते हैं कि ये ब्लड कैपिलरीज है, इनका एक नेटवर्क है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये बोमेन कैप्सूल के अंदर रेस्टेड होता है, उसके अंदर कंटेन होता है, उसके अंदर एक सेफ स्ट्रक्चर के सूरत में प्रेजेंट होता है। ये वो स्ट्रक्चर है, यहाँ से ये वो स्ट्रक्चर है, ये वो ब्लड कैपिलरीज हैं जहाँ से ब्लड इंटर होगा इस फिल्ट्रेशन यूनिट के अंदर। ये एक्चुअली एक फिल्ट्रेशन असेंबली है। मेजर फिल्ट्रेशन यहीं पे होगी। और ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये सिर्फ यहीं तक प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि ये तमाम ये जो लॉन्गी कॉइल स्ट्रक्चर है इसके इर्द गिर्द भी लिपटी होती हैं। ये नेक्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे, ये देखिए कि ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द तमाम इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ऑल अराउंड द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। अब ये जो कॉइल स्ट्रक्चर है, इनको ये कॉइल स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली ये भी फिल्ट्रेशन का काम करेगा। एक तो ये दो काम करेगा, जिसे हम ये यू शेप स्ट्रक्चर जिसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं, लूप ऑफ हेनले का और ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, जहाँ पे ये इनका एक्चुअली दो तरह का काम है। एक तो ये फिल्ट्रेशन करती हैं, एक फिल्ट्रेशन, और दूसरा काम इनका है सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम फिल्ट्रेशन हो सके। ठीक है, तो ये जो कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं, जहाँ ये कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स यू शेप्ड स्ट्रक्चर में आएंगी, उस यू शेप्ड स्ट्रक्चर को लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। अब ये तमाम कॉइल स्ट्रक्चर, ये तमाम ट्यूब्यूलर फिल्ट्रेशन यूनिट्स ओपन इनटू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स वो पॉइंट है, वो ट्यूब्यूल्स हैं जो यूरिन को कलेक्ट करके यूरेटर तक लेके जाएंगी। यानी ये जो ये आपको कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रही हैं, अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एक्सटेंड्स इनटू द पोरस स्ट्रक्चर्स विद ओपन्स अप इनटू द यूरेटर। यहाँ से यूरिन फॉर्मेशन, यहाँ से फिल्ट्रेशन होने के बाद यूरिन पास होता है कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में। कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स से लूप ऑफ हेनले से होता हुआ ये यूरिन पास आउट किया जाता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, और वहाँ से ये ड्रेन कर दिया जाता है
यूरेटर में, वहाँ से ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से यूरिन ड्रेन कर दिया जाता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में, वहाँ से ये यूरेटर में ड्रेन कर दिया जाता है. सो दैट्स द पाथ ऑफ यूरिन थ्रू आउट अ नेफ्रॉन. अब हम देखते हैं कि इसमें फिल्ट्रेशन कैसे होती है. इसी ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर को, बोमेन कैप्सूल को यानी रीनल कॉर्पसल को हमने जूम करके इस सूरत में एक ज़्यादा क्लियर स्ट्रक्चर की सूरत में आपको दिखाया गया है. यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ब्लड की एंट्रेंस है. ब्लड प्रेशर के हाइड्रोलिक प्रेशर एक क्रिएट करता है, उसके थ्रू ये हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू ये अपनी स्मॉल कैपिलरीज में आता है. अब ये जो स्मॉल कैपिलरीज हैं ये सिर्फ एक मेम्ब्रेन नहीं है बल्कि ये पोरस स्ट्रक्चर्स हैं. इसमें छोटे छोटे से बारीक से पोर्स हैं जो ब्लड के जो बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स को, जैसा कि वाटर और अदर बहुत से छोटे जो एलिमेंट्स हैं उनको फिल्टर करके कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स जो दैट ओपन्स अप इनटू द कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, उसमें ट्रांसफर कर देता है. यहाँ पे एक तरह की फिल्ट्रेशन होगी. इसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. As blood flow into each nephron, it enters a cluster of tiny blood vessels that are called glomerulus. These are called glomerulus. The thin walls of glomerulus, as you can see here, allow smaller molecules, wastes, and fluid, mostly water, to pass into the tubule. Larger molecules such as proteins and blood cells stay in the blood vessels. That's how the number one part of filtration, that is glomerular filtration, takes place in Bowman's capsule, which filters out and which separates out water and smaller molecules but retain in the blood the larger molecules such as proteins and other waste. Protein, actually, a question arises, why does it do not allow the proteins to pass through it? Because one of the reason is proteins are the particles that our body needs. हमारी बॉडी को प्रोटीन की एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत होती है. सो प्रोटीन्स का जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा वो एमिनो एसिड्स में ट्रांसफ़र नहीं होंगे और एमिनो एसिड अमोनिया से होते हुए यूरिक एसिड में चेंज नहीं होगी, तब तक फिल्टर नहीं की जा सकती. हो सकता है ब्लड में ये आने वाली प्रोटीन कुछ अभी रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ना गुजरी हो तो इस प्रोटीन को वापस ब्लड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. अब यहाँ से आने के बाद सिर्फ मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिर्फ ब्लड वेसल सिर्फ बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ही रिजाइड नहीं किए होती, बल्कि ये तमाम ये जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है इसके इर्द गिर्द भी कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है. तो हमारी फिल्ट्रेशन का सेकंड पार्ट ट्यूब्यूलर फिल्ट्रेशन यहाँ पे इन कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में होगा. A blood vessel runs alongside the tubule as I draw here. As the filtered fluid moves along the tubule from the Bowman's capsule, the blood vessels reabsorb almost all of the water along with minerals and nutrients your body needs. Here, a second part of filtration takes place. Extra water and useful minerals are then reabsorbed from these small vessels to the small tubules to the blood vessels. यहाँ पे एक और पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये इस पिक्चर की बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लोमेरुलस से जब ब्लड एक दफ़ा से फिल्ट्रेशन होने के बाद ट्यूब्यूल्स में आता है तो किस किस पॉइंट पे क्या क्या चीज़ रिमूव की जाती है. ये लूप ऑफ हेनले है, इसका यू शेप्ड स्ट्रक्चर, ये ना सिर्फ फिल्ट्रेशन करता है बल्कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है. और फिर ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं. हर सेक्शन में फिल्ट्रेशन का कुछ ना कुछ मैटर फिल्टर किया जाता है. अब अगर आप ग्लोमेरुलस के जो बिल्कुल नेक्स्ट सेक्शन है वहाँ तक आए तो सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम सॉल्ट और वाटर ये फिल्टर आउट किया, यानी ब्लड को वापस कर दिया जाता है क्योंकि हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत है.
सोडियम क्लोराइड यहाँ पे 67 to 40% तक ये अमाउंट पर ब्लड को वापस कर दिया जाता है। फिर जब ब्लड इधर डिसेंडिंग लिम्ब में आता है, यानी नीचे जाने वाले लिम्ब में जाता है नेफ्रॉन के, तो सोडियम क्लोराइड दोबारा पोटेशियम वाटर फिर से फिल्टर आउट कर दिया जाता है। जब लूप ऑफ हेनले में जब मैटर मूव करता है तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, सॉल्ट्स, ये सिर्फ मैग्नीशियम और कैल्शियम नहीं है, एलिमेंट्स नहीं है, बल्कि ये इनके सॉल्ट्स हैं। ये सॉल्ट्स फॉर्म में प्रेजेंट हैं और ये दोबारा से ब्लड को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इसी तरह जब असेंडिंग लिम्ब में जाते हुए सोडियम क्लोराइड दोबारा से 25% तक ब्लड को वापस कर दिया जाता है। सोडियम क्लोराइड यहाँ से जब कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में आता है तो 10% तक, फिर कैल्शियम, सॉल्ट्स और वाटर दोबारा से। इसके साथ साथ जो ब्लड का डीऑक्सीजनेटेड पार्ट है वो इन कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को सोडियम के सॉल्ट्स, हाइड्रोजन आयंस और यूरिया रिटर्न करता है। यानी यूरिन में अब इस पॉइंट पे आके यूरिया, हाइड्रोजन और पोटेशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ से ये दोबारा कन्वोल्यूटेड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में चला जाता है। अगर यहाँ इस स्टेज तक आते आते कोई एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर मौजूद हो तो वो भी ब्लड को वापस कर दिया जाता है ताकि बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो जाए, और यहाँ से ये यूरेटर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक नेफ्रॉन सारे दिन में 5 से 6 दफ़ा पूरे ब्लड की फिल्ट्रेशन करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी ब्लड की फिल्ट्रेशन की जाए यूरिनेशन हो, बल्कि ये तमाम चीज़ें स्टोर कर ली जाती हैं और एक पर्टिकुलर अमाउंट होने पे ही बॉडी से एक्सक्रीट आउट की जाती हैं। तो इस तरह से हमारा नेफ्रॉन यानी कि फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी वर्क्स। नेक्स्ट कम्स द होमवर्क। होमवर्क में हम अपनी टेक्स्ट एक्सरसाइज 2 देखें जो कि पेज 19 पे प्रेजेंट है, और इसमें से जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आप सॉल्व कीजिए। पार्ट ए में हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन 1 है, द बोमन्स कैप्सूल इज प्रेजेंट इन। बोमन्स कैप्सूल किस में प्रेजेंट होता है? यूरेटर में, यूरिथ्रा में, किडनी में या लंग्स में? बहुत अच्छे से आप जानते हैं, देख भी चुके हैं, सो आप राइट सर्कल को फिल करेंगे। अब नंबर 3 है, Kidneys are vital excretory organs for purifying the blood and balancing the concentration of water, oxygen, salts and energy. इनमें से किस चीज़ की concentration को किडनीज बैलेंस करता है वो आप मार्क करेंगे। नंबर 5 देखिए, इसको भी आप सॉल्व करेंगे। नंबर बी पार्ट देखिए, बाकी के एमसीक्यू हमारे आज के टॉपिक से रेलेवेंट नहीं है। नंबर बी पार्ट देखिए, डिफाइन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को आप बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एज वेल एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दैट फिल्टर आउट द ब्लड and making the urine. अब enlist the 2 main roles of kidneys. Kidneys के major roles क्या हैं ये भी आप बता सकते हैं। अब आप आइए अपने रिव्यू एक्सरसाइज में पेज 20 पे। नंबर 5 MCQ देखिए, नेफ्रॉन इज एसोसिएटेड विद सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, लिम्फेटिक और एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेफ्रॉन किस ऑर्गन सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं वो आपने आइडेंटिफाई करना है और उसके सर्कल को मार्क करना है। नेक्स्ट इज किडनीज डू नॉट परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। We identify the task that is not performed by the kidneys, whether it is water regulation, temperature maintenance of blood plasma, balancing of pH of blood. Excessive metabolic waste ये हम सॉल्व कर चुके हैं। Which of the following, नंबर 8 MCQ देखिए, which of the following may not lead to kidney malfunction। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो अभी हम इसे इग्नोर कर देते हैं। नंबर बी पार्ट देखिए, differentiate between neuron and nephron. Neuron was the functional unit of nervous system, whereas the nephron is the functional unit of excretory system. So you can differentiate easily between both structures. In short answer, you are demanded to write at least 2 major differences. Number C part देखिए, highlight the role of human kidney in excretion of waste. नंबर 6 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, नेफ्रॉन के डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के थ्रू आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत इजीली। नेक्स्ट कम्स द समर पैक चैप्टर 1 में पेज MCQ सेक्शन देखिए, उसमें MCQ नंबर 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ किडनीज। आपने 4 फंक्शंस दिए गए हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा किडनी का फंक्शन नहीं है। करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसकी रीजन भी बताएंगे कि आपने ये क्वेश्चन क्यों चूज किया। नंबर 19 है, ब्लड इज फिल्टर्ड आउट एट इन लिप ऑफ हैनले, ग्लोमेरुलस, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, रीनल मेडुला। अपेरेंटली ये लग रहा है कि इसके 3
ए बी सी आंसर करेक्ट है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि ये तीनों स्ट्रक्चर एक मेजर स्ट्रक्चर का पार्ट है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई very wisely the correct answer, and then you have to mention the reason. Number 20 question is, the blood after removal of waste is collected by, is it collected by renal artery, renal vein, renal capillaries, superior vena cava? Identify the vein or blood vessel that collects the filtered blood and then gives its reason. Then is number 22, collecting tubules drain urine into. Collecting tubules opens into which structures? You are to find out and then give the reason. Number 23rd question is, nephrons are found in which section of kidney? Nephrons are found. You are to give the answer. You are to identify and then give the reason. The filtration unit in kidney is renal veins, Bowman's capsule, renal medulla, all of these. It's very easy question. You can write its reason as well very easily. Question answer section. Question 6 देखिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ किडनी इन एक्सक्रीशन प्रोसेस। इसके नीचे आपको राइटिंग स्पेस दी गई है, वहाँ पे आपने लिखना है कि किडनी एक्सक्रीशन में क्या रोल प्ले करती है। नंबर 7 है, ड्रॉ एंड लेबल द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। आपने फंक्शनल यूनिट बताना है जो कि नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन को ड्रॉ करना है और उसके पार्ट्स को लेबल करना है। पार्ट ए ये है और पार्ट बी आपने ये भी बताना है कि ये फिल्ट्रेशन के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है, क्या नेफ्रॉन के अलावा कहीं और भी किडनी में फिल्ट्रेशन हो सकती है, इस आंसर को आपने जस्टिफाई करना है। ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि हमारे SLO को रोल ऑफ किडनी इन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में था। आई होप you have been able to achieve the SLO. In the next lecture we will discuss the malfunctioning conditions of kidneys and their treatments as well. Till then, Allah Hafiz. Thank you very much.